Welcome once again, everybody present here. Now you already knowing the fact that we are discussing the chapter climate of India, and I had already discussed with you that what is the meaning of climate, then what is the meaning of weather, then what are the elements of weather and climate. Then we discuss about the climate controls, the factors, the geographical factors which affect the climate of any place or any region or at the world level. Then we also had discussed with, but then we had also discussed with you the regional variation in the climate of India. That how does India, just having one climate, tropical monsoon climate, is having some regional differences in terms of precipitation and temperature. Then we also discussed about the factors which are going to affect the climate of India, and simultaneously we understood one by one the factors like how the latitudinal location of India is going to affect the climate of India, how does the altitude is going to affect the climate of India, how is relief feature is going to affect the climate of India, how the pressure and wind system is going to affect the climate of India. In pressure and wind system, we discussed three components. We discuss about the permanent and surface wind, permanent pressure belt and surface wind. Then we discuss about the jet stream. Then we discuss about the western disturbance and tropical cyclone. Then we also discuss how the distance from sea affects the climate of India. Then how ocean currents going to affect the climate of India. But ocean current, more or less, is not so much responsible factor to change the climate of India in at larger extent. So after discussing all these things, now we are on the verge of discussing a new topic, and that the topic name is Indian monsoon. So let us begin. The climate of India is strongly influenced by monsoon winds. The sailors who came to India in the historic times, were one of the first to have noticed the phenomenon of the monsoon. They benefited from the reversal of the wind system as they came by sailing ships at the mercy of the winds. The Arabs, who had also come to India as traders, named this seasonal reversal of wind system monsoon. So, what do you understand by Indian monsoon? Actually, the monsoon word has been derived from the Arabic language, and it means those types of winds which change their direction according to change in the season, or the reversal of change in the direction of wind system according to change in season is known as the monsoon wind. So monsoon winds going to affect the climate of India very prominently, and in medieval period, in earlier period, ancient period, particularly medieval period, the Arab seller used to come in India by the help of these monsoon winds, because these monsoon winds change their direction. Few months of the year they change from northeast direction, few months of the year they blow from the southwest direction. So this reversal of wind direction used to help the sailors, because when the direction of the wind was towards India, they used to come to India. When the direction of the wind was away from India, they used to go away from India. So it was very helpful for the traders, and they had named this Indian monsoon. एटमॉस्फेरिक कंडीशन ओवर द इंडियन सब कंटिनेंट इन द मंथ ऑफ जनवरी। जनवरी के मंथ में भारत के ऊपर में क्या एटमॉस्फेयर का कंडीशन होता है आप देख सकते हैं। ये दिस इज द मिडिल लाइन, ये मिडिल लाइन इक्वेटर है, और इक्वेटर के नॉर्थ साइड में देखिए कि एक तीर दिखाया गया है, तीर से डायरेक्शन दिखाया गया है जो कि नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड को दिखाया गया है, और इक्वेटर के साउथ में साउथ ईस्ट ट्रेड विंड को दिखाया गया है। तो ये सरफेस विंड है, ये परमानेंट विंड है, ये अपनी जगह पर बहती है। मंथ ऑफ जनवरी, जनवरी में ये पोजीशन है। और आप देखिए ये जो थोड़ा सा ब्रॉड लाइन में दिखाया गया है, थोड़ा सा बोल्ड लाइन में दिखाया गया है, तो ये जेट स्ट्रीम है। यहाँ लिखा भी हुआ है दोनों लाइन के बारे में, सरफेस विंड्स एंड सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जिप्स। तो ये ऊपर में जो बह रही है सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है, और आप जानते हैं कि ये ऑल द ईयर राउंड, पूरे सालों भर मतलब हिमालय के साउथ से बहती है। 27 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड्स के बीच में ये बहती है वेस्टर्न डायरेक्शन से, इसलिए इसका नाम पड़ता है सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। लेकिन गर्मी में ये इसका पोजीशन नॉर्थ ऑफ हिमालय हो जाता है, और इसकी जगह पर ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम आ जाती है। गर्मी में क्या होता है एटमॉस्फेरिक कंडीशन, थोड़ा सा देख लीजिए। गर्मी में आप देख रहे हैं ये एक तीर से दिखाया हुआ है विंड का डायरेक्शन, तो ये देखिए इक्वेटर जैसे ही क्रॉस कर रही, इक्वेटर के पहले इसका डायरेक्शन साउथ ईस्ट है,
इक्वेटर से पहले इसका डायरेक्शन साउथ ईस्ट है, और जैसे ही इक्वेटर क्रॉस कर रही है इसका डायरेक्शन साउथ वेस्ट हो जाता है। तो यही जो है जब इंडिया में गर्मी के मौसम में राजस्थान साइड में लो प्रेशर होता है तो ये विंड साउथ ईस्ट ट्रेड विंड अट्रैक्ट होती है, और इक्वेटर क्रॉस करने के बाद साउथ वेस्ट ट्रेड विंड बनकर इंडिया में इंटर करती है, और हम लोग कहते हैं कि मानसून विंड आ गया और वर्षा का सीजन शुरू हो जाता है। तो ये गर्मी का मंथ ऑफ जून का ये पोजीशन है। और ये देखिए एक ये ब्रोकन लाइन से दिखाया हुआ है एक तीर इस तरह से, ये ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है, ये ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है। अब वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो था वो आगे बढ़ गया है, देखिए नॉर्थ ऑफ हिमालय चला गया, दूर चला गया। तो ये एक मैप है थोड़ा सा। हाँ, अब देखिए व्हाट इज द मैकेनिज्म फॉर द ओरिजिन ऑफ मानसून विंड्स एंड कमिंग इन इंडिया। हमें ये जानना होगा कि आखिर मानसून विंड जो इंडिया में आती है क्या उसके पीछे कोई कारण मौजूद है, क्या कुछ इस तरह का एटमॉस्फेरिक वर्ल्ड लेवल पर कुछ ऐसी एटमॉस्फेरिक घटनाएं घटती हैं, कुछ जोग्राफिकल कंडीशंस होते हैं, प्री रिक्विटीज़ होते हैं जिसके चलते ही मानसून आता है। हाँ, एक मैकेनिज्म है, एक सिस्टम है जिसके चलते ये मानसून विंड इंडिया में आती है और फिर कुछ महीने रहने के बाद फिर लौट जाती है। तो इसको कहते हैं मैकेनिज्म ऑफ इंडियन मानसून। वो क्या मैकेनिज्म है? In India, the monsoon are experienced in the tropical area roughly between 20 डिग्री नॉर्थ एंड 20 डिग्री साउथ। तो भारत का आप जानते हैं लैटिट्यूडनल एक्सटेंस क्या है, 8 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से लेकर 37 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के बीच में। तो अब भारत में ये जो मानसून विंड भी चलती है इसका इफेक्ट 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से नीचे आते आते ये 20 डिग्री साउथ तक, माने कि इक्वेटर के साउथ तक भी जाता है। इंडिया तो 8 डिग्री नॉर्थ से शुरू होता है पोजीशन उसका, लेकिन ये इक्वेटर के साउथ में भी इसका पोजीशन। तो मानसून विंड्स रफली 20 डिग्री नॉर्थ से 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के बीच में ग्लोब पर बहती है, माने साउथ ईस्ट एशिया बहती है। द फॉलोइंग फैक्ट्स आर द मैकेनिज्म ऑफ मानसून। तो कौन कौन सा मैकेनिज्म है? पहला क्या है? द डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। जमीन और पानी दोनों को गर्मी सूरज की रोशनी से मिलती है, लेकिन दोनों का गर्म होने का रेट और ठंडा होने का रेट में अंतर है, और जिसके चलते प्रेशर का डिफरेंस होता है, और हवा कभी ज़मीन से समुद्र की ओर तो कभी समुद्र से ज़मीन की ओर चलती है। ये कैसे होता है? देखिए, द डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर क्रिएट्स लो प्रेशर ऑन द लैंड मास ऑफ इंडिया वाइल द सीज आर अराउंड एक्सपीरियंस कंपेरेटिवली हाई प्रेशर। तो जब गर्मी का मौसम आता है तो भारत के इंटीरियर पार्ट में, नॉर्थ वेस्ट पार्ट में, राजस्थान साइड में लो प्रेशर हो जाता है, और हमारा समुद्री इलाका में हाई प्रेशर रहता है। इसलिए समुद्री इलाके से भारत की ओर हवाएं चलने रहती हैं साउथ वेस्ट मानसून के रूप में। अगर ये प्रेशर डिफरेंस नहीं रहता तो फिर मानसून विंड इंडिया में नहीं आता। तो पहला क्या फैक्ट हम लोग देखें, पहला क्या मैकेनिज्म देखें कि भारत का जो पोजीशन है, इंडिया इज सिचुएटेड इन सच ए टाइप दैट इट इज सराउंडेड बाई ओशियन फ्रॉम 3 साइड्स एंड नॉर्दर्न एरिया इज टोटली लैंडलॉक्ड। तो जो नॉर्दर्न एरिया है वो लैंड है, तो वहाँ जल्दी गर्म हो जाता है गर्मी के मौसम में, और समुद्र अभी ठंडा ही रहता है, तो समुद्र में हाई प्रेशर हो जाता है, जिसके चलते समुद्र से लैंड की तरफ हवा चलती है। दूसरा कारण क्या है? द शिफ्ट ऑफ द पोजिशन ऑफ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्सेंट जोन एंड समर over the Ganga plains, and it is the equatorial turf, normally position about 5 degree north of the equator. It is also known as the monsoon turf during the monsoon season. तो ये इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्सेंट जोन ये क्या है? आप देखिएगा परमानेंट विंड सिस्टम में, परमानेंट विंड सिस्टम के जब मैप को आप देखिएगा कि कौन से परमानेंट विंड बहती है, तो यहाँ पर आपको देखिए नजर आएगा कि नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड, ये जो दोनों विंड है ये कहाँ आकर मिलती है? ये इक्वेटर पर आकर मिलती है, और इक्वेटर पर आकर मिलने से ये दोनों यहाँ पर आकर कन्वर्ज करती है, और कन्वर्ज करने के चलते ये फिर आपका ऊपर उठती है। तो ये परमानेंट विंड का कहाँ गया? आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर आप देखिए नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड, ये दोनों आकर इक्वेटर पर मिलती है, और ये 0 डिग्री से 5 डिग्री नॉर्थ और 0 डिग्री से 5 डिग्री साउथ तक ये दोनों मिलती है, और मिलने के बाद ऊपर उठती है। तो इसी का नाम पड़ता है ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्सेंट जोन।
तो होता क्या है कि धरती जो है वो सूरज के चारों तरफ घूमते रहती है, और घूमने के चलते, रिवॉल्यूशन के चलते क्या होता है कि कभी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सूरज की तरफ इंक्लाइन होता है, कभी साउदर्न हेमिस्फीयर हो जाता है। तो जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जून के महीने में सूरज की तरफ इंक्लाइन रहता है, तो उस समय क्या होता है कि आपका पूरा प्रेशर बेल्ट नॉर्थ की तरफ घिसक जाता है, थोड़ा थोड़ा सब ऊपर उठ जाते हैं, और ITCZ भी थोड़ा नॉर्थ की तरफ चला आता है। और जब जाड़ा का मौसम आता है तो सब इक्वेटर से थोड़ा साउथ की तरफ मैंने शिफ्ट कर जाते हैं। तो ये परमानेंट प्रेशर बेल्ट जो हैं ये नॉर्थ और साउथ शिफ्ट करते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द अपेरेंट मूवमेंट ऑफ द सन। सूरज की सामने पृथ्वी की स्थिति बदलने के कारण कभी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर गर्म रहता है तो कभी साउदर्न हेमिस्फीयर गर्म रहता है। तो जो सूरज के नज़दीक रहेगा वो ज़्यादा गर्म होता है। जून में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सूरज के नज़दीक रहता है, इंक्लाइंट रहता है, तो वो गर्म हो जाता है। तो सारे प्रेशर बेल्ट ऊपर की तरफ थोड़ा सा नॉर्थ में शिफ्ट हो जाते हैं। तो ITCZ भी जो इक्वेटर के 0 से 5 डिग्री की तरफ रहता है नॉर्थ और साउथ में, ये भी थोड़ा ऊपर घुसक जाता है और वो गंगा के प्लेन तक भी आ सकता है, और इसका नाम मानसून टर्फ पड़ता है। तो यहाँ तक मतलब साउथ ईस्ट ट्रेड विंड खींचकर अपने आप चले जाती है, क्योंकि ITCZ भी आगे बढ़ जाता है। और यहाँ तक आने से फिर क्या होता है कि बारिश खूब होती है। अगर ये मानसून टर्फ, मानसून की धुरी भी कहते हैं इसको ITCZ को, और ये जब हिमालय के ऊपर आता है तो हिमालय क्षेत्र में खूब बारिश होती है, और ये जब मैदानी इलाके के ऊपर आता है तो मैदानी इलाके के ऊपर खूब बारिश होती है। तीसरा क्या है, इसे देखिए यहाँ लिखा हुआ है द इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्सेस जोन। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्सेस जोन के बारे में जो थोड़ा सा बताया गया है, इज ए ब्रॉड टर्फ ऑफ लो प्रेशर इन इक्वेटोरियल लैटिट्यूड। तो 0 डिग्री जो इक्वेटर है उसके नॉर्थ 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ के बीच में ये एरिया मिलता है। दिस इज वेयर द नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स कन्वर्स। मैंने यही बताया था कि नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड यहाँ आकर मिलती है, और मिलने के बाद ऊपर उठती है। द कन्वर्जेंट जोन्स लाइज मोर और लेस पैरेलल टू द इक्वेटर बट मूव्स नॉर्थ और साउथ विद द अपेरेंट मूवमेंट ऑफ द सन। तो जैसे ही सन का रोशनी जब कभी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वर्टिकल होता है, कभी साउदर्न हेमिस्फीयर में, तो उसके हिसाब से ये भी ऊपर नीचे शिफ्ट करती है। तीसरा क्या है, द प्रेजेंस ऑफ हाई प्रेशर एरिया ईस्ट ऑफ मेडागास्कर नियरली एट 20 डिग्री साउथ ओवर द इंडियन ओशन। द इंटेंसिटी ऑफ हाई प्रेशर एरिया अफेक्ट्स द इंडियन मानसून। तो इंडियन मानसून के आने में मेडागास्कर के आसपास का हाई प्रेशर का मतलब जो एरिया है वो भी अफेक्ट करता है। ये साउथ 20 डिग्री साउथ इंडियन ओशन में एक जगह है मेडागास्कर, वहाँ पर हाई प्रेशर रहता है हमेशा, और हाई प्रेशर रहता है तो वहाँ से विंड फिर इंडियन ओशन की तरफ, इंडिया की तरफ चलती है। तो वो हाई प्रेशर कितना इंटेंस है, कितना मजबूत है, उसके हिसाब से इंडियन मानसून की इंटेंसिटी निर्भर करती है कि वो इंडिया में कब आएगा, कितनी तेज़ी से आएगा, लेट आएगा, कमज़ोर होगा। तो हर साल मानसून अपने सेम स्ट्रेंथ से नहीं आता है, कभी देर से आता है, कभी पहले आता है, कभी मजबूत होके आता है, कभी कमज़ोर होके आता है, कभी रुक रुक कर आता है, कभी आके बीच में रुक जाता है। तो मानसून का प्रिडिक्ट मतलब सही सही करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत सारी घटनाओं पर इसका, जियोग्राफिकल फैक्टर पर इसका इंडिया में आना निर्भर करता है। तो ये है एक हाई प्रेशर जो एरिया है मेडागास्कर के बाद, जो साउथ 20 डिग्री साउथ ओवर इंडियन ओशन, मैंने ये मेडागास्कर एक जगह है, वहाँ पर इसका क्या हाई प्रेशर का पोजीशन है। चौथा है द टिबेटन प्लेटू गेट्स इंटेंसली हीटेड ड्यूरिंग समर, रिजल्ट्स इन स्ट्रॉन्ग वर्टिकल करेंट्स एंड द फॉर्मेशन ऑफ लो प्रेशर ओवर प्लेटू एट अबाउट 9 किलोमीटर ओवर द सी लेवल। तो आप जानते हैं कि संसार की सबसे बड़ी छत है टिबेटन प्लेटू। अब छत पर गर्मी के मौसम में आप छत पर चढ़िए तो कितना गर्म होता है, छत खाली पैर चलना मुश्किल होता है। तो गर्मी के मौसम में टिबेटन प्लेटू भी काफ़ी इंटेंसली हीटेड हो जाता है, और फिर वहाँ पर हवा गर्म होकर सीधे सीधे ऊपर उठती है, और सीधे ऊपर उठती है, और वहाँ लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, और वो 9 किलोमीटर ऊंचाई तक लो प्रेशर क्रिएट रहता है। पांचवा क्या कारण है, और उससे भी लो प्रेशर होने से भी विंड इंडिया की तरफ आती है समुद्र की तरफ से, साउथ वेस्ट मानसून के रूप में। द मूवमेंट ऑफ वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम टू द नॉर्थ ऑफ हिमालय एंड द प्रेजेंस ऑफ ट्रॉपिकल स्टर्ली जेट्स ओवर द इंडियन पेनिनसुला ड्यूरिंग समर। समर में क्या होता है कि इंडिया के ऊपर मतलब वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम 12 किलोमीटर ऊंचाई पर चलने वाली एक विंड है, फास्ट फ्लोइंग विंड है वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, जो सालों भर वेस्टर्न डायरेक्शन से आती है और 27 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के बीच में चलती है, इसलिए इसका नाम पड़ता है सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। लेकिन ये हमेशा नॉर्थ ऑफ मतलब साउथ ऑफ हिमालय बहती है इंडिया में। लेकिन जैसे ही गर्मी का मौसम होता है इसका पोजीशन नॉर्थ की तरफ चला जाता है, हिमालय के नॉर्थ में चला जाता है, और
इंडिया के ऊपर, इंडियन पेनिनसुलर के ऊपर एक ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम आ जाती है, ईस्ट डायरेक्शन से आती है और ये 14 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड्स के आसपास ऊपर बहती है और इसके कारण भी इंडिया में मानसून आता है। तो आपको केवल फैक्ट जान लेना है कि कौन कौन से फैक्ट्स हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग द इंडिया मानसून इन इंडिया। सो ऑल टुगेदर देयर आर 5 facts which are responsible to bring the southwest monsoon in India. First is the differential heating and cooling of the land and water. Second is the shift of the ITC jet in the northern direction in summer season. Third is the presence of high pressure area east of Madagascar, nearly 20 degrees south over the Indian Ocean. Fourth is the Tibetan Plateau, intense heating of Tibetan Plateau and becoming as an area of low pressure. And fifth is one the movement of easterly jet stream in north of Himalaya and presence of the easterly jet stream in south of Himalaya during summer season. So okay, you have just to learn these names.